Hello students, this is a new chapter I am going to start. This is pricing and distribution channels and physical distribution. The chapter is headed by this, and I am going to explain in this class what is the meaning of pricing, its significance, factors affecting price of a product and pricing policies. Now price, what do you mean by price? Price हमने तो पढ़ के आए बेटा, मार्केटिंग मिक्स हम पढ़ के आए थे. तो मार्केटिंग मिक्स का 4 एलिमेंट्स था, 4 एलिमेंट्स. सेकेंड एलिमेंट क्या था? प्राइस. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस. तो प्राइस इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एंड व्हाट इज प्राइस? इससे क्या होता है ना? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स. और why price is important? Why price is important or pricing is important? There are certain factors which will explain the importance of price of a product. First one is number 1, internal factors. Internal factors are what? Now, in order to price a product, मतलब कि प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन करने के लिए इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सेल्स पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, अदर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स लाइक प्रोडक्ट प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, extent of distinctiveness of the product and extent of differentiating practice and marketing mix policies. So these are the internal factors influencing the price of a product. Okay. Now the external factors. What are the external factors? External means the factors outside the factory. What are these? Now, demand of the product, price of the competitive goods in the market, competition, behavior of the buyers or consumers, legal restrictions, price elasticity of demand and supply relationship. So ये दोनों फैक्टर्स याद रखना बेटा. इंटरनल फैक्टर्स जो है दैट इज प्रोडक्ट रिलेटेड, विच द फैक्टर्स विच एक्चुअली related with the directly related with the product and inside the factory. And external factors means when the product is being introduced, product development हो गया, मतलब introduce हो गया मार्केट में, उसके बाद जो फैक्टर्स आ रहा है that these are external factors. Now comes to pricing policies. बहुत सारा pricing policy है बनाया गया in order to fix a price of a product, and these policies actually depending upon the different kinds of products also. ठीक है. तो various pricing policies actually various types of products के लिए बनाया गया. तो हम लोग just policies के बारे में जानेंगे बेटा. Now there are 7 pricing policies in our syllabus. New product pricing policies, price variation policies, geographical pricing policies, price differential pricing policies, leader pricing policies, psychological pricing or odd pricing, and promotion pricing. Now let me explain one by one. The first one is new product pricing policies. What does it mean? क्या है ये ना? कोई भी नई प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, हम लोग इंट्रोड्यूस होता है और प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, तब इसके अंदर 2 तरह का प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं बाय द कंपनी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ इन द मोनोपोली मार्केट, in the monopoly business, in case of monopoly business actually ये skimming pricing policies और skim the cream pricing policies अपनाया जाता है. Now first of all you have to know what is skimming pricing policies or skim the cream pricing policies. अच्छा, जब कोई दूध में तो पता है बेटा मलाई होता है, तो मलाई के जब आप उठा लेते हो
तो वो बन जाता है स्कीम्ड मिल्क, मतलब मलाई बिना दूध। तो वो स्कीम द क्रीम, मतलब मलाई को आप उठा लो। ऐसे प्राइसिंग पॉलिसी क्यों बताया गया? क्योंकि मोनोपोली बिजनेस में क्या होता है, मेनली हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट जो होता है, लग्जरियस प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो हायर इनकम ग्रुप्स और रिच पीपल वुड बाई दोज प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस ऐसे फिक्स किया जाता है कि रिच एंड एलिट क्लास ऑफ कस्टमर्स आर रेडी टू पे द प्राइस। एंड दिस इज़ डन क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये हाई प्राइस जितना जल्दी हो सके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर पाए, रिटर्न कर पाए। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी हो जाए। एंड price is fixed up at higher range so as to earn higher per unit profits. कैसे है? फॉर एग्जाम्पल लग्जरी आइटम्स लाइक न्यू डायमंड ज्वेलरी, न्यू हाई एंड कार्स, प्रीमियम कार्स, न्यू मेडिसिन्स, ये सब का प्राइस इतना ज़्यादा बनाया जाता है, फिक्सअप किया जाता है, सो दैट बहुत जल्दी ही इसका इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए और प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा अर्न किया जाए पर यूनिट प्रोडक्ट से। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग, न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग पॉलिसी इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। नाउ पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी कम्पिटिटिव, परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में इसको पाया जाते हैं। नाउ पेनिट्रेशन मीन्स व्हाट? पेनिट्रेट करने का मतलब घुसना, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर ये प्राइसिंग पॉलिसी के द्वारा मार्केट के अंदर, टारगेट मार्केट के अंदर घुसना, पेनिट्रेट करना। सो इट इज़ रिटन इन द कम्पिटिटिव मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट ए लो प्राइस। कोई नया प्रोडक्ट आया तो कम्पिटिटिव मार्केट में पहले क्या हुआ, लो प्राइस प्रोडक्ट बनाया गया, लो प्राइस में वो अंदर आया, मार्केट में घुसा, सो एज टू कैप्चर द टारगेट मार्केट शेयर अर्ली। देखो, हम पहले बताए थे कंज्यूमर बिहेवियर में कोई भी प्रोडक्ट अब जब हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, जो प्रोडक्ट हम आते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो है, तो बहुत हम शिफ्ट करना चाहते हैं। एक प्रोडक्ट यूज़ करते करते बहुत बोर हो गए तो नेक्स्ट चलो एक ही तो दाम है, मोर और लेस, हाँ सेम टाइप, इसका यूटिलिटी भी सेम है, चलो चेंज करते हैं। तो इसीलिए ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में नए प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा दम कम करके लो प्राइस में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड वाई लो प्राइस में इंट्रोड्यूस करेंगे, जो शिफ्टिंग कस्टमर्स है वो जल्दी उसको अपना लेगा, तो इस ऐसे वो टारगेट मार्केट को बहुत जल्दी कैप्चर कर पाता है। एंड ड्यू टू राइज इन डिमांड, इसके साथ टारगेट मार्केट कैप्चर होना मतलब क्या है, डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, तो राइज इन डिमांड एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिमांड राइज करने का मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाना। अल्टीमेटली द प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। सो इट इज़ रिटन हियर, ध्यान से सुनो, इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट अ लो प्राइस सो एज टू कैप्चर द टारगेट मार्केट शेयर अर्ली, एंड ड्यू टू राइज इन डिमांड एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली द प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। जैसे कि एग्जाम्पल है न्यू बुक पब्लिशर्स, न्यू एफएमसीजी कंपनीज एट्सेट्रा। एफएमसीजी का मतलब क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। हम डेली जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स बाज़ार से खरीद के, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, दीज आर ऑल एफएमसीजी। नाउ नेक्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी इज प्राइस वेरिएशन पॉलिसी। प्राइस वेरिएशन का मतलब क्या है ना, प्राइस को थोड़ा वेरी कर सकेंगे, ऐसे प्राइसिंग पॉलिसी बनाया जाता है बेटा। यहाँ पर द बिजनेस वेरी द प्राइस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट्स। जैसे एक एक जगह मार्केट में, एक एक स्टेट का मार्केट में एक एक प्राइस होता है ना। वेरिएबल प्राइस पॉलिसी, वेरिएबल मतलब जो प्राइस पॉलिसी है लिया गया, जो प्राइसिंग एक एक जगह का, एक एक मार्केट का प्राइस, एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का प्राइस वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मार्केट्स, ओके, needs of different markets. Now in the case the producer, in this case the producer charges various prices to various customers for the same product in the different markets.
For example, Mother Dairy Paneer. Now Mother Dairy Paneer, Mother Dairy is a brand. Mother Dairy Paneer वेस्ट बंगाल में भी बिक सकते हैं और बेचा जाता है, दिल्ली में भी बेचा जाता है. Now this is my experience, I am sharing with you. हमने यहाँ पर दिल्ली का मदर डेयरी पनीर भी मिलता है. Now दिल्ली मदर डेयरी पनीर एंड वेस्ट बंगाल का जो मदर डेयरी पनीर है, तो दोनों में प्राइस का फ़र्क है. क्वांटिटी सेम, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन दिल्ली का मदर डेयरी पनीर इज लिटिल बिट हायर प्राइस दैन द बंगाल पनीर, मदर डेयरी पनीर. सो देखो, एक ही ब्रांड है, एक ही कंपनी है मदर डेयरी, वो दिल्ली में बेचता है हायर प्राइस में. हायर मतलब कंपेयरिंग टू बंगाल प्राइस. ओके. नेक्स्ट इज़ अमूल मिल्क. अमूल मिल्क देखो, गुजरात में जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर ऑब्वियसली कम होगा, अदर स्टेट्स में ज़्यादा होगा. जैसे मस्टर्ड ऑयल भी ऐसे कुछ इन बंगाल स्टेट के लिए एक है, बाहर के स्टेट के लिए अलग है. चिप्स का भी ऐसे होता है. तो आप लोग ख्याल करोगे, घर में जो प्रोडक्ट लाते हो बेटा, देखोगे लेबल के ऊपर, प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर लिखा होता है कि दिस कैन बी सोल्ड इन वेस्ट बंगाल ओनली एट दिस प्राइस, लाइक दैट. ठीक है, ऐसे कुछ दिया होता है. नाउ नॉन वेरिएबल, नेक्स्ट इज प्राइस वेरिएशन पॉलिसी का नेक्स्ट पार्ट इज नॉन वेरिएबल प्राइस पॉलिसी, और इट इज़ कॉल्ड एज वन प्राइस पॉलिसी. वन प्राइस पॉलिसी मतलब एक ही प्राइस होगा, हर मार्केट में एक ही प्राइस होगा. ओके. नाउ थर्ड प्राइसिंग पॉलिसी इज जोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी. नाउ जोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसीज एक्चुअली, यहाँ ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है ये डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसा होगा, कितना हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करके प्राइस को डिटरमिन किया जाता है, प्रोडक्ट प्राइस को डिटरमिन किया जाता है. नाउ इन दिस केस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द मेन थ्रस्ट और मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. सपोज कोई प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल में बन रहा है तो उसका डिमांड आया सपोज चेन्नई से, ठीक है, और उड़ीसा से भी. तो देखो बेटा, इसका प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, उड़ीसा के लिए एक होगा बिकॉज दिस इज़ आवर नेबरिंग स्टेट, पास वाला स्टेट है, लेकिन चेन्नई तो बहुत दूर है, तो चेन्नई का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा ना, इसीलिए प्राइस भी वैसे डिटरमिन किया जाएगा, थोड़ा हायर प्राइस होगा. एंड जोग्राफिकल प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, फिर से बता रही हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. Next, number 4th is price differential pricing policies. Now price differential मतलब जो प्राइस प्रोडक्ट प्राइस है उस जो है उससे थोड़ा कम या ज़्यादा प्राइस से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं बेटा. जैसे कि इन दिस केस द फाइनल और एक्चुअल प्राइस मे बी लेस देन और मोर देन द कोटेड प्राइस. ठीक है ना. द डिफरेंशियल्स आर, क्या क्या हो सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है, रिबेट मिल सकता है, और ज़्यादा भी दे सकते हैं, प्रीमियम ज़्यादा भी देना होता है इस प्रोडक्ट के लिए. जो प्रोडक्ट का दाम है उससे ज़्यादा एक्चुअली हम देंगे और कम एक्चुअली हम देंगे, उसको ही कहते हैं प्राइस डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसीज़. नाउ नेक्स्ट नंबर 5 है इज लीडर प्राइसिंग पॉलिसीज. सो नाम से पता चलता है बेटा, लीडर का मतलब क्या है ना, जो लीड करता है. सो इन दिस केस द डोमिनेंट कंपनी, हमारा तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सपोज इन द FMCG प्रोडक्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डोमिनेटिंग आवर कंट्री. सो हिंदुस्तान यूनिलीवर सब हर रोज़ का जो यूज़ हुआ माने प्रोडक्ट है, यूज्ड प्रोडक्ट माने यूजेबल प्रोडक्ट्स है, सब कुछ में नियरली बनाता है. सो इट इज़ अ डोमिनेटिंग कंपनी, वी कैन से दैट इन दैट सेंस. नाउ ये दिस कंपनी एक्चुअली प्राइस फ्लैक्चुएशंस को अनऑफिशियली रेगुलेट करता है, अनऑफिशियली. हाँ, बिकॉज इफ इट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट द कंपिटिटर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस देयर प्राइसेस. हिंदुस्तान यूनिलीवर जब प्राइस रिड्यूस करता है किसी प्रोडक्ट को तो ऑटोमेटिकली अदर जो कंपनी है सब रिड्यूस कर देगा, नहीं तो उन लोगों का प्राइस उस कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं बेच पाएगा. ठीक है, बिकॉज द डोमिनेटिंग कंपनी का प्राइस रिड्यूस हो गया.
रिडक्शन हुआ, प्राइस रिडक्शन हुआ. सो this can be possible only when a product is produced in a mass scale. Obviously, जब एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा तब भी ये पॉसिबल है प्राइस रिडक्शन. एंड द प्रोडक्ट इज़ वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से, दाम के हिसाब से सब कुछ मिला के स्टैंडर्ड होना चाहिए. द फॉर्मर मतलब जो डोमिनेंट कंपनी है उसको कहा जाता है प्राइस लीडर. एंड द लैटर्स जो कंपनीज उस माने डोमिनेंट प्राइस लीडर्स का जो स्ट्रैटेजी होगा उसको फॉलो करता है रिलेटिंग टू द प्राइस रिडक्शन और प्राइस इंक्रीज, उसको कहेंगे प्राइस फॉलोअर्स. फॉर एग्जांपल सोप, पेंट्स, टी, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, सिगरेट एट्सेट्रा. These are all FMCG product and ये सब लीडर प्राइसिंग पॉलिसीज़ द्वारा इसका प्राइस डिटरमिन किया जाता है. नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग और ऑट प्राइसिंग. नाउ इन दिस केस द प्राइस फिक्स्ड अप एट ए फिगर लोअर देन द राउंडेड ऑफ फिगर. जैसे राउंडेड ऑफ मतलब जैसे कि देखो एक प्रोडक्ट का दाम है 9,950. ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, ड्यूरेबल गुड्स प्रोडक्ट का दाम है 9,950. तो हमारे दिमाग में है ये 4 डिजिट फिगर्स है. लेकिन इसका दाम जब भी 10,000 हो जाएगा बेटा, जस्ट 50 रुपया का डिफरेंस है. ठीक है, जब 10,000 हो जाएगा तो हम सोचेंगे बाबा 10,000 5 डिजिट प्राइस. तो ये हम लोगों का दिमाग में एक पहले एक इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उसके बाद में हम सोचेंगे कि सिर्फ तो 50 रुपया का तो फ़र्क है. लेकिन जल्दी जब हम ख़रीदने जाते हैं ना बेटा, ये 50 रुपया भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट बाइंग डिसीजन मेकिंग के टाइम. जैसे बाटा शूज़ पे अब तो सब जानते हो बेटा, बाटा शू कंपनी क्या करता है, जो जितना फुटवेयर्स है सब 9 में आके खड़े हो जाता है. 999, 1999, 399, 299, राउंड ऑफ नहीं करता. तो दिस इज़ इट्स प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग पॉलिसी. तो जब 999 कहेंगे तो बोलो 1,000 रुपया, ओ बाबा 4 डिजिट हो गया, ऐसे कुछ एक इम्पैक्ट आता है बेटा. So this is done, क्यों होता है ये pricing policy? Now this is done to give an impact on the mind of the customers, mainly ladies customers, that the price of the footwear is lower than 1,000, that is 999, and lower than 2,000, that is 1,999. In other words, they thought that the price is not expensive, that the product is not expensive. Okay, price नहीं बेटा, product होगा. Okay. Now the last type of pricing policy is promotional pricing. Promotional pricing stimulates the customers to purchase products early. जल्दी खरीदने के लिए इसको promotional pricing stimulate करता है customers को. Now इसके अंदर there are 3 types of promotional pricing. Number 1 is loss leader pricing. Now most of the supermarkets or shopping malls give heavy discounts, buy one get one free offer, reduce prices below MRP, initially or intentionally to attract more and more customers and increase sales. This is termed as loss leader pricing. Okay, जो buy one get one heavy discount दे रहा है, ऐसे कुछ. नेक्स्ट इज स्पेशल इवेंट प्राइसिंग. स्पेशल इवेंट प्राइसिंग मतलब कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके लिए स्पेशल प्राइसेस डिटरमिन किया जाता है ये जब कोई स्पेशल इवेंट होता है उस सीज़न में. जैसे इन इंडिया हमारे क्या होता है बेटा, एक मैरिज सीज़न रहता है. नाउ इन मैरिज सीजन्स लाइक अप्रैल टू नवंबर और जनवरी टू मार्च, यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी है, वेडिंग हॉल्स है, क्लोथ्स है ब्राइड और ब्राइड ग्रूम का, ये सब के लिए अलग करके पैकेज बनाया जाता है और अलग करके इसका प्राइस भी फिक्स अप किया जाता है. लेकिन इस टाइम के अलावा इसका प्राइस थोड़ा कम होता है. तो दिस इज स्पेशल इवेंट प्राइसिंग. एंड कैश
cash rebate actually in this case the durable products like cars, two wheelers, fans, washing machines and other appliances जब आप खरीदने जाते हो तो कैश रिबेट दिया जाता है, दैट इज़ द MRP से कुछ कम किया जाता है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए. सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज़. और देखो प्राइसिंग एक एक टाइप के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स है, तो जस्ट ध्यान से पढ़ना. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत जल्दी आप समझ सकोगे. ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास.